Okay. First of all, I would like to know today you all introduction. Like Laksh is here, Smita Kamal, Syam Lal, Nandesh Solanki, Alos Yadav. Alos, hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. आपका नाम इस तरह का है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपका प्रोनाउंस क्या है आपके नाम का? Sir, Alos. आलोस। ओके Yes, ओके। sir. आलोक मुझे पता था। Yes, sir, मेरे फादर का नेम है। सर मेरे फादर और मदर के नेम से मिलके बना है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। लव शर्मा, पीयूष, अस्मिता and many more. I think 18 is here. And Aditya, Aditya, hello. Yes, sir. How are you feeling when I am teaching you? So fine. Any problem? No, sir. Now tell me, what is your doubt for today? For you only. No, sir. How many questions you have solved in sequences series right now? Means till now. Sir, 50, 60 plus. Okay, from which source? Sir, Kelvin modules. Okay, and uh, is there any requirement to consult your NCERT or other books? Sir, NCRT done. Okay, NCERT done. Okay. Akshara Sharma, please. Can you are you audible for me? Hello. Yes, sir. Hmm. How are you, beta? Let क्या मैथ्स में किसी तरह का कोई डाउट है? No, sir. अक्षरा, आप कितना क्वेश्चन रोज करती है? अगर मैथ्स क्लास नहीं हो तो भी एक एवरेज बता दो पर वीक। Sir, रोज तो 10 to 15। नहीं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो बेटा। ये कम से कम 25 to 30 होना चाहिए। ठीक है। Okay, sir. मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मैं चूंकि फर्स्ट टाइम ये चीज देख रहा हूँ। सौमिल अग्रवाल, Yes, sir. हाउ आर यू बेटा? Fine, sir. एनी डाउट इन मैथ्स? Yes, sir. Sequence series में दो तीन डाउट्स है। है, आज सर, पूछोगे मुझे? यस सर, एक्चुअली लास्ट टाइम भी ना मैं पूछ रहा था, लास्ट में वो एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो आज पूछ लेना आप। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हम लास्ट में डील करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। ये सारे बॉयज जो भी। अस्मिता कामल, Yes, sir. हेलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। हाउ इज योर मैथ्स? So it's good. गुड। इट मीन्स you have you will do you are doing per day average 50 to 60 questions. So not 50, around 30 to 40. Okay, but if you love math, then you should do like that. Okay. Okay, sir. Okay, now I'm going to please Syam Lal, Piyush, Love Sharma, everyone. You are I most like, but I can't see due to corona pandemic. But any doubt, any problem, if you feel, without hesitation, you can discuss with me. I will share my number with you all today, and then you can discuss. If you don't like to share your problem,
in group, then you can talk with me individually too. Okay? So now I'm going to discuss on topic. Okay? 1 second, please. Beta, screen is visible or not? Yes, sir. Okay, good. So today's topic is last topic is going on. Today's topic is infinite series or miscellaneous series. You can say miscellaneous series. Sum of n term of series. Okay. Sum of miscellaneous series. Okay. Means how to find the sum of any type of series which follow the rules of sequence, which follow the rules of progression. For this, we have to need some formula as sum of sum of n terms. No, n terms you cannot say. Sum of first n natural number. First n natural numbers. Natural numbers means 1 plus 2 plus 3 plus dot 2n equals to, it's in a arithmetic progression, so its value is n into n minus 1 by n plus 1 by 2. Okay, and it is equals to sigma of r, or sigma of r equals to 1 to n, and its value is n into n plus 1 by 2. Okay. Second one is sum of sum of square of n natural numbers. Natural numbers equals to, it is denoted as sigma of r equals to 1 to n r square. Okay, means that is equals to 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus n square. Okay, that is equals to n into n minus n plus 1, sorry, into 2n plus 1 by 6. Okay. See, sum of cube of sum of cube of n natural numbers. Sum of cube of n natural numbers equals to what? N into n plus 1 by 2 whole square. Okay, which is equals to sigma of r cube. R equals to 1 to n. सबमिशन फॉर्म में लिखने का ये फायदा होता है कि इसको आप इतना बड़ा जो लिखोगे आप, उससे बढ़िया है कि समेशन में लिख दो। मीन्स क्या है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यू लिख रहे हो, तो इसका जो सम हो गया यही हो गया एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसका स्क्वायर ब्रेक कर दो तो ये आता है। ठीक है,
इस तरह से डी का भी है। डी का मतलब क्या है? सम ऑफ fourth power of n natural numbers means equals to sigma of r to the power 4, r equals to 1 to n, that is 1 to the power 4 plus 2 to the power 4 plus 3 to the power 4 plus dot 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 n to the power 4, and this is equals to what? This is equals to 3n square plus 3n minus 1 into n into n plus 1 into 2n plus 1. 2n plus 1 means n into n plus 1 into 2n plus, sorry, 1 minute. You write it like this. Okay, you can write it n into n plus 1 into 2n plus 1 into 3n square plus 3n minus 1 over 30. So these are the common formula which will be used to solve how to find the summation of such series in which power up to power 4 is used. Okay. आगे बढ़े बच्चे? Hello. Yes, sir. Yes, sir. I think there is no need to prove it. So, it's advanced time and it's a time of objective questions. That is why I think there is no need to prove it. Okay. If you want, then I can prove it. But I think that will take much time and there is no requirement of these things. Yes. Okay. सर सीबीएसई में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन? सीबीएसई में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये डी को छोड़ दो तो ये फर्स्ट 3 पर सीबीएसई में क्वेश्चन आएंगे। सर इस बार कमेंटेड है अभी। सुनो ना, लेकिन ये नहीं आएगा कि प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है? ये जस्ट एज ए फॉर्मूला यू कैन यूज। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. चलिए, तो मतलब ये डी मैं इसलिए बता दिया हूँ कि देखो इसके अलावा भी 1 to the power 5 का भी बता सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो लेवल है, आप देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है तो क्या है, उसके लिए कंडीशन है कि क्वेश्चन शुड बी लाइक दैट you can solve that, you could solve that within 2 or 3 minutes, isn't it? Yes, sir. And if a question is of 5th power, then no anyone will be able to solve those questions in 5 minutes, 2 minutes or 3 minutes. Okay, that is why I think it's enough. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Okay beta, okay. See now, see which type of question is asked on this formula. Question is, find the sum of first n terms of the series. इसी के अंतर्गत जो बच्चे आप लोग बता रहे थे कि ये जीपी सीरीज होता है, ये सीरीज होता है, वो सीरीज होता है, सब सीरीज आ जाएगा इसके अंदर।
आज मैं सारे सीरीज को खोल के रख देता हूँ। जैसे सिंपल वाला क्वेश्चन जो आएगा वो मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको दे दिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n term of the series 1 cube plus 3 into 2 cube plus 3 cube। एक मिनट बच्चे, ये गलत जगह पहुंच गया। चलिए 1 into 1 cube plus 3 into 2 cube plus 5 into 2 to the power 5 into 3 cube plus dot up to n terms। ठीक है, up to n terms। तो इसका समेशन निकालने का जो एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। जनरल फॉर्मूला कि Sn जो होता है Sn इक्वल टू सिग्मा टी, टी आर इक्वल टू 1 to n, एंड दिस वन इज Sn। ठीक है, तो इसका जब सम निकालना होगा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जनरल टर्म निकाल, मतलब nth टर्म निकालना है। यहाँ से अगर टी आर की वैल्यू निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, देखो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू अगर निकालना चाहो तो पहला चीज तो आ गया इनटू 2n minus जो 1। जा रहा है 1 into 3 1 plus 3 plus 5 plus 7 है कि ना। इसका अगर निकालोगे ये सीरीज जो जाएगा 1 plus 3 plus 5 इस तरह से जा रहा है, तो इसका nth टर्म निकालोगे तो क्या निकलेगा, टी एन इक्वल टू निकल जाएगा a plus n minus 1 into d। d क्या है 2 है कि नहीं, तो यहाँ आपने 2 पुट किया और वैल्यू अब क्या मिल गया 2n minus 2 plus 1 means 2n minus 1। okay, so tn is n cube into 2n minus 1, isn't it, है कि नहीं। अब Sn चाहिए, hence इसके अकॉर्डिंग आप Sn निकाल सकते हो। Sn इक्वल टू व्हाट, सर समझ नहीं आया टीएन कैसे निकाला है। अरे देखो Yes, एक sir. तो जा रहा है 1 into 1 क्यूब 3 into 2 क्यूब 5 into 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट टर्म जो होगा nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, ये 1 क्यूब 2 क्यूब, ये देखो मल्टीपल फॉर्म में है कि नहीं, सारे टर्म जो है एक दूसरे से मल्टीपल फॉर्म में है। यस सर। अगर ये मल्टीपल फॉर्म है तो बताओ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब जब जाएगा तो nth टर्म जो होगा वो n क्यूब होगा। यस सर। अब आप देखो दूसरा सीरीज जो जा रहा है वो जा रहा है 1 3 5 7 9, इसका भी तो nth टर्म ही निकालोगे ना। यस सर। तो बताओ tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीरीज आपका हो गया 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं, अरे वो 1 Yes, है sir. ये 3 है ये 5 है कि नहीं। तो बताओ tn क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बिकॉज डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 2। ओके, यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो, 2n माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, 2n माइनस 1 होगा कि नहीं Yes। बच्चे, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब आपको तो देखो ये जब ये अगर कोई भी टर्म जो है मल्टीपल फॉर्म में है तो nth टर्म भी तो मल्टीपल फॉर्म में ही होगा, isn't it? यस सर। ओके, तो इसलिए tn इक्वल टू ये हो गया। अब कह रहा है Sn, Sn क्या हो गया सिग्मा ऑफ tn। ठीक है, अब सिग्मा आप लगाएंगे क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ n क्यूब इंटू 2n माइनस 1। सिग्मा मतलब होता है समेशन, बेटा ये याद Yes। रखना बस।
और इसके भी रूल्स हैं, इसको भी सॉल्व करने के रूल है। ये नहीं है कि आप इनटू में अगर ये लिखा है तब सिग्मा ऑफ एन क्यू इंटू सिग्मा ऑफ 2n-1 लिख दोगे, ठीक है। इसको लिखने का तरीका हमेशा ये अलग हो सकता है, तो प्लस या माइनस के केस में अलग हो सकता है, इनटू या डिवीजन के केस में कभी नहीं अलग हो सकता है, कदापि नहीं। ठीक है बच्चे, इसको आप लिख सकते हो सिग्मा ऑफ 2n टू द पावर 4, नहीं इसको मल्टीप्लाई करो तो ये लिखोगे माइनस एन क्यू, है कि नहीं, ये लिखा है ना बच्चे। और इसको आप अब क्या है कि ब्रैकेट हटाओगे तो इसको अलग अलग कर दोगे, 2 इंटू एन टू द पावर 4 माइनस सिग्मा ऑफ एन क्यू है। और इसको अलग करोगे तो ये जो कांस्टेंट होता है इसको बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हर टर्म के साथ मल्टीपल फॉर्म में होगा, उससे बढ़िया है पहले बाहर कर ले, सिग्मा ऑफ एन टू द पावर 4 माइनस सिग्मा ऑफ एन क्यूब। अभी देखो एन टू द पावर 4 की वैल्यू आपको बताया गया कि नहीं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 बाय 30, लेकिन अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये तो अब अलजेब्रा का पार्ट हो गया, ये हो गया n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4, है कि नहीं। अब इसके आगे आप सॉल्व कर लो तो आपको डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगा। बस समझ में आ गई आप लोग को? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े ना। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन Yes, आप लोग कीजिए, इसी पर बेस्ट दे रहा हूँ मैं। कहीं डाउट होता है तो बेटा कभी मत सोचना है कि मैं समझ लो कि क्लास में मैं आपका दोस्त हूँ, ओके, आई एम योर फ्रेंड, आई एम लाइक योर फ्रेंड, ओके। तो क्लास में कहीं हेजिटेट नहीं होना है, डायरेक्ट पूछना है कि सर यहाँ कैसे होगा। और आप डिस्कशन जानते हो, अभी आपके 12th वाले क्लास के बच्चे जो हैं वो मेरे साथ बहुत ज्यादा हो गया है यूज टू, मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं, कैसे प्लस माइनस हुआ सर, ये कैसे हुआ, मतलब कुछ भी, तो ऐसे आप भी कर सकते हो और मुझे लगता है आप ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि वो तो बहुत कुछ जानते हैं, आप तो कुछ नहीं जानते हो, है कि नहीं। तो प्लीज आप लोग भी इस तरह लिखो क्वेश्चन, एक दो बच्चे हो, दो चार के, बहुत सारे बच्चे क्या, अभी मैं कुछ नहीं इस पर बोलूंगा, क्योंकि अभी मुझे जब तक आपसे फेस टू फेस नहीं बात होती है तब तक तो कहना कुछ मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। अभी तो जो आंसर दोगे वही मुझे परफेक्ट लगते हो, अदरवाइज क्लास में होते तो मैं आपका कॉपी चेक करता तो मुझे आपका अप्रोच पता चलता, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n terms of the series one into 2 into 3, 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus dot 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 up to n terms. Please solve it. Easy question दिया मैं आपको। First of all, we should find nth term, then we can find Sn. It's the rule. ओके, आपका तो मैं जानता हूँ, आप तो कर लोगे, मुझे पता है। मुझे ये बताओ आप इसमें शॉर्टकट क्या यूज किए? सर इसके अंदर क्या होता है कि अगर 3 टर्म्स एक साथ हैं, हम जो इसका सम होता है, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया, लेकिन फिर भी आप एक्सप्लेन करो।
शॉर्टकट अदर को बच्चे अगर समझ जाएं तो ज्यादा बेनिफिशियल है। शॉर्टकट को हाँ हाँ। 3 टर्म्स है अगर एक साथ मल्टीप्लिकेशन में, हम्म, तो हम इसका जो समेशन है वो लिख सकते हैं सीरीज का n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन एन प्लस थ्री, मतलब 3 थे तो हमने 4 लिख दिए और डिवाइडेड बाय 4। ऐसे अगर 4 टर्म्स होती मल्टीप्लिकेशन में तो हम ऊपर 5 टर्म्स तक मल्टीप्लाई करते फिर अपॉन 5 कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो उससे डायरेक्ट आ जाता। अच्छा अगर इसमें डिफरेंस हो तो, जैसे 1 into 3 into 5 लिखा है और फिर दूसरा टर्म अलग चेंज हो गया, मतलब अलग अलग डिफरेंस हो जाएगा, तब ये रूल नहीं काम करता है। यस सर। एक सिंगल इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा, चलो लेकिन आप लोग को इसका डिटेल्स ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखो मैं तो ये जान के बता रहा हूँ कि आप कुछ नहीं जानते हो, है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके साथ ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं अगर उस तरीके से बताऊं डायरेक्ट, अभी कहेंगे सर क्या बोल के चले गए, पता ही नहीं चला, है कि नहीं? बच्चे आप लोग उस मेथड से मत करना जो मेथड अभी ये डिस्कस किया है, आप लोग एकदम मेथड से जाना, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका है आपके लिए इस टॉपिक से। सर ये मेथड कैसे आया? कौन सा? सर ये जो भी बोला था। ये मेथड कुछ नहीं है, बस 1 into 2 into 3 है, तो इसको आप समझ लो कि 1 into 2 into 3 into 4 है, बात खत्म। जब ये कंटिन्यूअस नंबर्स होते हैं ना, मेथड्स तो उसी से आएंगे, जो तरीका है उसी से आएगा, शॉर्टकट जो बनता है लॉन्ग कट से ही तो बनता है। आपको इसमें क्या करना है, अगर मान लो इस तरह का सीक्वेंस लिया है, इसलिए कि देखो यहाँ 1 को यूज किया है, यहाँ 2 को यूज किया है, यहाँ 3 को यूज किया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, है कि नहीं? तो कंटिन्यूअस नंबर्स हैं, ये अगर n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू का फॉर्म है, तो tn जो हो रहा है, tn क्या हो गया, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ठीक है? तो इन्होंने ट्रिक जो बताया वो यही बताया कि एसएन जब निकालना हो तो एक और आगे बढ़ा दो, अब बाय जितना है उतना कर दो, मतलब n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू प्लस इंटू एन प्लस थ्री बाय 4 कर दो बस। लेकिन ये आएगा कैसे, ये तो सोचना है ना, आपको थोड़ी पता है। मतलब इस तरह का अगर कंजिक्यूटिव सीक्वेंस बना है, तब आप ऐसे ऐसे निकाल सकते हो, वो ये कहना चाह रहा था। अब आपको समझ में आई बात? यस। चलिए, लेकिन आप इसी मेथड से करो। चलो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, इसमें तो आप लोग तो लॉन्ग कट करोगे नहीं, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि इसका मेथड सीख लो, तो आप लोग शॉर्टकट ही उड़ना चाहते हो। चलो, फाइंड द सम ऑफ find the sum of n terms of the series 31 cube plus 32 cube plus 33 cube plus dot 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 50 cube। एक क्यूब है बच्चे, सॉल्व इट। डन सर। इसमें भी कोई शॉर्टकट ले लिया क्या जी? नो सर।
और ये 31 है। कोई शॉर्टकट नहीं, आराम से आप निकाल सकते हो। देखो ये क्या है कि सम ऑफ क्यूब ऑफ लास्ट 20 टर्म आउट ऑफ 50 टर्म्स, ये है। इसको आप लिख सकते हो एस एन मान लो, इसको थोड़ा देर के लिए एस एन ई कर दो, तो ये हो जाएगा S50 माइनस S30, ठीक है नीचे। अब S50 का मतलब हो गया सिग्मा ऑफ R क्यूब, R इक्वल्स टू 1 to n 1 to 50 माइनस सिग्मा ऑफ R क्यूब, R इक्वल्स टू 1 to 30। मतलब 1 से 50 के बीच में अगर 1 से 30 माइनस कर दे तो यही मिलेगा ना। सर तो बस Yes, sir. इसे निकाल दो, क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको पता है n इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ 50 है, 50 इंटू 51/2 होल स्क्वायर माइनस ये 30 है, तो 30 इंटू 31/2 होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आंसर बात समझ में आई बच्चों। यस सर। Yes. चलिए, अब इसी में एक और वैरायटी दिया जाता है। मैं नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ। देखिए इसी में आपको क्या होगा, कभी कभी टी एन के टर्म नहीं दे देगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ टी टी एन इक्वल्स टू, सॉरी इस तरह से क्वेश्चन है, सिग्मा ऑफ टी आर, आर इक्वल्स टू 1 to n, मतलब ये एस एन दे दिया है, समझ गए कि नहीं। सिग्मा ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to n का मतलब ये एस एन हो गया, सर n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, ओके। and find sigma of r equals to 1 to n square root of tr, yeah। बच्चे एक मिनट आप लोग करो, मैं एक मिनट में ज्वाइन करता हूँ।
बच्चे, कैन इट बी सॉल्व? Yes, sir, 2. डन सर, हाँ, डन सर। ओके। क्या है? √6 इंटू सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। इसको सॉल्व करो तो थोड़ा। ओके सर। सिग्मा n और सिग्मा 1 तो n हो गया, और सिग्मा n का मतलब n इंटू n प्लस 1/2 हो गया। सही है, सही है। लिखने पर ब्रेक कर लो तो। सिग्मा में क्यों रहने दिया? सर वो बोलने में छोटा पड़ता है ना इसलिए। ओहो, क्या बात है। नहीं, सही है आपका। Let it be, let it be done to others also, please. सर क्या आ रहा है आंसर? सही है, आपका सही है, मैं समझ गया। ओके सर। अदर को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैं रोक दिया हूँ आंसर। जस्ट ट्राई करने दो सबको। बॉयज, क्या मैं सॉल्व करूं इसको? हेलो, बच्चे, अगर कोई डाउट हो रहा है पूछ लो, अदरवाइज मैं सॉल्व करूं इसको। So, इसका मेथड तो ये होगा ना कि हम जो सम है वो SN-1 कर देंगे, तो हमारा TN आ जाएगा। टीएन आ जाएगा, और टीएन जब आएगा तब जाके आपको, चूंकि एसएन दे दिया है आपके पास, ये जो इनडायरेक्टली एसएन आपको दिया है, इसलिए आपको टीएन तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो टीएन इक्वल टू, आप जान रहे हो, बहुत अच्छा सोचे आप, कि देखो एसएन इक्वल टू आपको क्या दिया है, एन इंटू 2n² प्लस 9n प्लस 13, ये प्लस है बच्चे, प्लस 13। एक मिनट करो इसको। ये एसएन इक्वल टू ये दे दिया है, तो बताओ टीएन क्या होगा? टी एन आपका हो जाएगा SN-SN-1, दैट इज इक्वल टू, अगर एन से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ज्यादा सही है, नहीं इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2n³ प्लस 9n² प्लस 13n। ठीक है, अब Sn के बदले तो यही डायरेक्ट लिख दोगे, 2n³ प्लस 9n² प्लस 13n माइनस 2 इंटू
n-1 whole cube plus 9 into n-1 whole square plus 13 into n-1 ये n है। तो बच्चे इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में मशक्कत होगी, है कि नहीं? ये 2n क्यूब हो गया, n स्क्वायर 9n स्क्वायर हो गया प्लस 13n माइनस, अब ये ब्रेक करो, ये ब्रेक करो, ये ब्रेक करो, सबको ब्रेक तो करना पड़ेगा। तो आपको tn मिल जाता है, और tn जब मिल जाता है तो ऐसे इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? मैं ब्रेक करूँ कि कर लोगे आप लोग? फिर हो जाएगा। हो जाएगा। तो इसके आगे आप बस एसएन कर देना, एसएन इक्वल्स टू फिर से आ जाएगा सिग्मा ऑफ सॉरी आपको स्क्वायर रूट ऑफ टी आर निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एसएन निकालना है। इज इट स्क्वायर रूट ऑफ एसएन? Raj, I'm asking you, is it square root of Sn? नो सर, स्क्वायर रूट ऑफ Is it square root of Sn? नो सर। नो सर। हाँ, यही No, सोचना था, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे। वो गलती मत करना। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको स्क्वायर फॉर्म में लाने की कोशिश करना है मुझे। ये जब स्क्वायर फॉर्म में आएगा तब इसका स्क्वायर रूट आपको पता चल जाएगा, ठीक है? यस सर। चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, जो भी और भी बच्चे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे ये स्क्वायर फॉर्म में कैसे सर लिखेंगे इसको, है कि नहीं? क्वेश्चन तो मैं कभी कभी ऐसा डाल देता हूँ तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आता है। फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। अब इसका स्क्वायर ब्रेक करोगे, चलो मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? -2 of n-1 whole cube -9 of n-1 whole square plus sorry minus of 13 into n-1। ओके, अब इसको जब ब्रेक करते हो तो ये आ जाएगा 2n क्यूब प्लस 9 स्क्वायर प्लस 13n माइनस n-1 तो कॉमन लेके भी कोई फायदा नहीं है। कॉमन ले लेते तो ज्यादा सही था, उससे ज्यादा जल्दी निकल जाता। ठीक है, चलो इसको एज इट इज रहने दो। n-1 होल क्यूब माइनस 9 इंटू n-1 होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू n-। तो फाइनली जो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको क्या? 6n स्क्वायर। आप लोग घर में अपना देख लेना। 12n हो रहा है। प्लस 6, ये शायद आ रहा है। यस सर। तो यस सर, यही हो रहा है। इसमें अगर 6 कॉमन ले लो तो देखो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 मतलब आ गया 6 इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो tn इक्वल टू अगर ये हुआ है 6 इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर, तो बताओ स्क्वायर रूट ऑफ टीन क्या हो जाएगा? √6 इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, है कि नहीं? और ये 1 है। yes, तो बताओ सिग्मा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n रूट ओवर tn इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ऑफ √6 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, अंदर में आ गया
n+1 या r+1 आप लिख सकते हैं, r=1 to n। ओके, और इसी को उसने शॉर्ट में बता दिया मुझे कि सिग्मा ऑफ r=1 to n r होगा प्लस सिग्मा ऑफ 1 तो आप डायरेक्ट n लिख सकते हो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सिग्मा ऑफ r की वैल्यू आप जान रहे हो, क्या जान रहे हो, क्या जान रहे हो बच्चे, n जल्दी बताओ। n+1/2। अरे आप तो जानते ही हो, उनको बोलने दो जो। देखो ये फॉर्मूला में मैं लिखा हुआ कि इसको, इसका मतलब वो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब 1 + 2 + 3, इसका सम हो जाता है n इंटू n+1/2। ठीक है, प्लस n। ठीक है, और ये वैल्यू फाइनली आपका √6। इसके आगे तो आप सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं। n² + n + 2n मतलब क्या हो गया, n² + 3n/2। ठीक है, और ये देखो 3 × 2 लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हो √3/√2। n into n+1, n+3, सॉरी। ठीक है बच्चे, हेलो। Yes, sir. Yes. चलिए, अब जब आप ये समझ गए तो मैं इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन दे सकता हूँ जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करो। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम of the series up to n terms, series of the up to n terms, डायरेक्ट सीरीज ही लिख देता हूँ, 1³ / 1 प्लस 1³ + 2³ 1³ + 2³ by 1 + 3 plus 1³ + 2³ + 3³ by 1 + 3 + 5 plus ... up to n terms, up to n terms. Please solve it.
आंसर। हम्म? हो गया आपका? यस। बेटा फिर से आप अपना नाम बताओ तो। सोमिल। डन सर। सोमिल। सोमिल। और ये लास्ट जो डन बोले हैं उनका क्या नाम है? कुणाल। नाल। अच्छा, इसमें भी कोई शॉर्टकट लगा दी क्या जी? नो सर। जैसे आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट है ना, हालांकि कॉपी पर तो ऐसे भी फास्ट हो जाता है, इतना कंप्यूटर पर मेरे से फास्ट नहीं हो पा रहा है। क्या हो सकता है? पेन टैप पर इतना फास्ट हो सकता है? डिपेंड करता है सर। क्या डिपेंड करता है? मैं कितना प्रैक्टिस करूं जो इतना फास्ट में सब पेन टैप नई पर चीज है लिख सर, लूं? प्रैक्टिस। अच्छा, पेन टैप पर भी हो सकता है। चलिए, कॉपी पर आप लिख रहे हो इसीलिए बोल रहे हो। इसमें भी आप सबसे पहले क्या करो कि nth टर्म निकालो बस। nth टर्म क्या होगा ये पहले डिसाइड कर लो। nth टर्म मिलेगा तो आपका सारा काम हो जाएगा। देखो बच्चे, कर रहा है, पेन टैप पर भी हो जाएगा। आप इसका nth टर्म निकालो। nth टर्म क्या हो जाएगा? tn इक्वल टू हो जाएगा 1q प्लस 2q प्लस 3q। मैं लिख रहा हूँ फास्ट, प्लस nq बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसका जो nth टर्म आएगा वो क्या आएगा? n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इससे निकलेगा, है कि नहीं? या nth टर्म अगर निकालते हो तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो ऐसे लिखो, इसको समझ में आ जाएगा। nth टर्म इसका क्या होगा? 1 प्लस n माइनस वन इंटू टू, ये आएगा nth टर्म। फाइनली आप इसको लिख सकते हो 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट डॉट। न्यूमरेटर तो क्लियर है लेकिन डिनोमिनेटर क्लियर है। ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 2n माइनस 2 प्लस 1 मीन्स 2n माइनस 1। ओके, तो tn आपका फाइनली क्या आ गया? tn इक्वल टू आ गया, ये देखो ऊपर वाला तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, या n स्क्वायर n प्लस वन बाई टू n प्लस वन होल स्क्वायर बाय 4। और इसका सम अगर निकालते हो किया जाएगा n बाय टू, क्योंकि देखो nth टर्म जो है सम के फॉर्म में दिया है, इसलिए आपको लिखना होगा n बाय टू 2a 2 इंटू वन प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंस इज 2, इस फॉर्म में आएगा। और अब आप इसको लिख सकते हो, देखो एक n से तो एक n चला जाएगा तो एक n भी बचेगा, n प्लस वन होल स्क्वायर बाय, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, n चला गया है 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस टू, मतलब क्या हो गया? 2n माइनस टू प्लस टू मीन्स 2n बच गया अगेन। फिर से आप n से n कैंसिल कर सकते हो, तो बचा क्या? n प्लस वन होल स्क्वायर बाय 4। ठीक है बच्चे, अब ये tn की वैल्यू है तो बताओ Sn क्या होगा? Sn हो जाएगा सिग्मा ऑफ tn। ठीक है, मतलब 1/4 तो आप बाहर कर लोगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, सिग्मा ऑफ n plus 1 whole square. Okay, now you can write it 1/4 sigma of n square plus 2n plus 1
Okay. Now you separate it. It will be sigma of n square plus 2 into sigma of n plus sigma of 1. Okay. Now just put it. या इसको थोड़ा सा और सॉर्ट अप कर सकते थे। ये तो एक मेथड हुआ जिसके तहत आप जा सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा लेंदी हो रहा है। मान लो ये दो को आप हटा सकते थे। ठीक है बच्चे, ये हटा सकते थे क्या जानते हो? इसको आप डायरेक्ट ब्रेक कर दो, क्योंकि ये क्या है, r इक्वल्स टू 1 to n के केस में है। तो यहाँ 1 पुट कर दो, तो ये सीरीज जो बनेगा ये बन जाएगा 1 पुट सर करोगे तो 1 + 1 2 स्क्वायर। हाँ बोलिए। सर डिनोमिनेटर में वहाँ पे 2n की जगह n स्क्वायर होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अच्छा ये n से मल्टीप्लाई था। यस सर, और वहाँ पे 2 नहीं आएगा, n स्क्वायर। अरे तो ये n तो मैं इससे एक n काट दिया ना, देखो ना n लिखा हूँ यहाँ पर मैं। यस सर, तो तभी तो डिनोमिनेटर में एक n रह जाएगा ना। एक n रह जाएगा तो एक n तो ऊपर भी बचा था ना। देखो आप समझने की कोशिश करो, देखो ये क्या है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर है कि नहीं। अब यहाँ जो एक n आया था उससे एक n हमने पहले खत्म कर दिया, तो ये n गायब हो गया, बचा क्या, n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर, जो यहाँ लिखा n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर, यस सर। अब क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 2n आ रहा है, तो फिर इस n से हमने इस n को उड़ा दिया, तो बचेगा यही ना। नहीं समझे? यस सर, वो मैंने देखा नहीं हेलो। था। ओहो, मैं वो उसी समय बोला था ना कि एक n से, मैं यहाँ काटने का नहीं दिखाया, चलो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक n से स्क्वायर भी उड़ गया। सो यहाँ पे हमने बचा 4 से क्या, की n मल्टीप्लाई किया था। 4 से, अरे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। यस। तो बताओ वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। अब उसका ओके स्क्वायर सर, ब्रेक कर दो तो n स्क्वायर टू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। एनी डाउट अदर्स? नो। No, sir. ओके बेटा। सो मैं ये बोल रहा था कि इसको ब्रेक करने से ज्यादा अच्छा है कि यहीं डायरेक्ट पुट कर दो, तो आपको आसानी से रिजल्ट मिल जाता है। जो 2 स्टेप करोगे फिर उसको ब्रेक करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। n प्लस 1 होल स्क्वायर है तो r इक्वल्स टू 1 पुट करते चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, नहीं 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 स्क्वायर, प्लस 2 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर, प्लस 4 स्क्वायर, प्लस डॉट 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 n पुट करेंगे तो n प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, होगा कि नहीं? Yes. ये 1 Yes, है, sir. n प्लस 1 होल स्क्वायर। एक मिनट, ठीक कर दो। ये हो जाएगा n प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो इसके साथ 1 स्क्वायर नहीं ऐड है, तो क्या करते हैं, इसके साथ 1 स्क्वायर ऐड कर देते हैं और माइनस 1 स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, इसके बदले आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/4। ये क्या है, n प्लस 1 होल स्क्वायर तक चला गया, तो n के जगह पर आपको n प्लस 1 लिखना पड़ेगा। n n के जगह पर n प्लस 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1
n इंटू एन प्लस वन होता है, n प्लस वन मीन्स n प्लस टू, इंटू टू एन प्लस वन होता है, तो ये हो जाएगा टू इंटू एन प्लस वन है कि नहीं, माइनस वन, और इसके बदले नीचे क्या आ जाएगा, सिक्स ही आ जाएगा। ये लाइन समझे कि नहीं? n के जगह पर हमने क्या किया, चूंकि अप टू n टर्म, n प्लस वन टर्म आप सम कर रहे हो, तो n के प्लेस पर आपने n प्लस वन रखा, ये हो गया यस सर। n प्लस वन, n प्लस टू, टू एन Yes, sir. प्लस वन, तो ये इसलिए मैं ऐसा किया। और फाइनली जब आप इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई फोर n प्लस वन, n प्लस टू, और ये हो जाएगा टू एन प्लस टू, टू एन प्लस थ्री हो जाएगा, नहीं, टू एन प्लस थ्री माइनस सिक्स बाय सिक्स। ठीक है बच्चे? Yes. इसको और सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लेना, यही आंसर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम? नो सर। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर। ये तो जो था आपका कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके हिसाब से, अब आते हैं हम लोग अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। आगे बढ़े? Yes. जहाँ पर शायद पुराने बच्चों का टॉपिक था, हालांकि मैं क्वेश्चन तो बहुत कुछ करा चुका हूँ ऑलरेडी इस पर, आप लोगों ने भी देखा होगा। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज कहा जाता है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, पहला जो सीरीज होगा वो आपका अरिथमेटिक होगा और दूसरा सीरीज जो होगा वो ज्योमेट्रिक होगा। ठीक है, जनरल फॉर्म अब देखो, जनरल फॉर्म, ताकि आप इस पर बेस्ट क्वेश्चन कर चुके हो। जनरल फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटू ए प्लस, सॉरी एक, दूसरा हो जाएगा ए प्लस टी, चूंकि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो होता है जनरल टर्म, वो सेकेंड टर्म ए प्लस टी होता है, इंटू आर। फिर होगा ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस थ्री डी इंटू आर क्यूब। ठीक है बच्चे, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म तक जाओगे अप टू एन टर्म्स। ये है इसका जनरल फॉर्म। तो जब भी इस तरह का फॉर्म होगा और इसका सम निकालने की बात आएगी, तो एस एन जो होगा, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री डी इंटू आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म भी आप लिख सकते हो ए इंटू एन माइनस टू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये इस तरह से जाएगा तो लास्ट टर्म जो आएगा आपका यही आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टू द पावर एन माइनस वन। तो जब भी आपका इस तरह का सीरीज मिलता है तो आप क्या करो कि जो कॉमन रेशियो है, जस्ट फाइंड आउट द कॉमन रेशियो and multiply both sides by that common ratio and make a difference.
find the difference, and that difference will give you the required answer. Okay, मेरी बात समझ रहे हो? इन केस ऑफ, मैं लिख देता हूँ, इन केस ऑफ, देखो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तक तो नहीं पहुंचना चाहता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ, इन केस ऑफ ए जी एम सीरीज to find the sum, we should multiply the whole series by its common ratio, then we get required sum. बात समझ में आई बच्चे? अब एग्जाम्पल एक लेते हैं, आपको पता चलेगा। हमेशा याद रखो कि अगर मान लो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी दिया है तो कोई बात नहीं, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का मतलब ये हो रहा है कि ज्योमेट्रिक सीरीज डायरेक्ट नहीं दिया है। क्या है कि डिफरेंस, दो टर्म का डिफरेंस जब देखते हो t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, अगर उसका डिफरेंस भी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, वो भी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज ही कहलाएगा, और तब भी आपको कॉमन रेशियो से ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चा? अब जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल जैसे मान लो कहा जाए कि फाइंड द सम ऑफ n terms of the series, yeah, Sn equals to 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube plus dot 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 up to n terms, ठीक है बच्चे? अब ये क्वेश्चन है, तो जैसे ही इसमें देखो कि क्या है कॉमन रेशियो, पता चल रहा है कि इसका कॉमन रेशियो x है, अब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? और x से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या होगा आगे, और उसी से आपको आंसर मिलेगा। अगला स्लाइड ऑन करें बेटा? उस पर मैं शो कर पाऊंगा पूरा? ओके, ठीक है। Sn इक्वल टू क्या लिया गया था? Sn इक्वल टू लिया गया 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। देखो अगर चाहो तो इसका n टर्म भी निकाल सकते हो। Tn इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? Tn इक्वल टू आप आराम से कर सकते हो, 1 3 5 7 9 गया है, मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इंटू, ये देखो x टू द पावर 0 से शुरू हुआ है, तब कर सकते हो x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है? तो फाइनली ये आपका आ गया 2n माइनस 2 प्लस 1 मीन्स 2n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n माइनस 1। लेकिन जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज दिया जाए तब आप यूज नहीं कर सकते हो Sn इक्वल टू सिग्मा Tn। ठीक है? क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये Sn इक्वल टू सिग्मा Tn वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि सम्मेशन जो है वो वर्क सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए करता है। बात याद रहेगी बच्चे? Sn इक्वल टू सिग्मा Tn is used only for arithmetic progression,
not for geometric or harmonic. Okay? So finally you can write it Sn equals to 1 plus Yes, sir. 3x plus 5x square plus dot 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 2n minus 1 into x to the power n minus 1. Okay. Now what I told you, to multiply both sides by common ratio, and common ratio is here x. So just multiplying both sides by x. Multiplying both sides by x, we get what we get, x into Sn equals to 1 into x means x, 3x into x is 3x square, 5x square into x is 5x cube plus dot dot dot. Here it will be x से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2n, सॉरी इससे पहले का टर्म आएगा, इससे पहले का टर्म क्या आएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और फिर आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इसको आप Yes, इसके sir. सामने ही रखते तो ज्यादा सही था, मैं थोड़ा आगे बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, आप समझ गया। अब इसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिए, हर जगह माइनस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, एस एन माइनस एक्स इंटू एस एन। ओके, और 1 तो 1 ही रहेगा, 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसी तरह से 2x क्यूब प्लस डॉट 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 2n माइनस 1, और ये 2n माइनस 2 है, इसको माइनस कर लो, क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, फिर से 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस, सॉरी ये माइनस हो गया, माइनस 2n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n, चूंकि एक्स टू द पावर n वाला कोई टर्म है ही नहीं, है कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात? Yes, 2n sir. माइनस 1 Yes, sir. इंटू एक्स टू Yes. द पावर n का कोई टर्म नहीं है, इसलिए उसको आप अलग रखोगे। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से Sn कॉमन लोगे, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस, देखो हर एक टर्म में 2 है, 2 कॉमन ले लो, मिलेगा क्या 2x कॉमन ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं 2 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ सोचो नंबर ऑफ टर्म क्या है इस सीरीज में, नंबर ऑफ टर्म क्या है n माइनस 1 ही तो है, यस माइनस क्या हो गया 2n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n। तब इसका सम आप ज्योमेट्रिक सीरीज से निकाल सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू ए आर टू द पावर n माइनस 1, है कि नहीं, ए आर टू द पावर, यस ए क्या है x, और पता नहीं है कि x ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, जो भी लेना है ले सकते हो। 1 माइनस क्या होता है 1 ए आर टू द पावर n माइनस 1 मीन्स x टू द पावर n माइनस 1 बाय 1 माइनस x, है कि नहीं? आप x माइनस 1 भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि माइनस कॉमन ले लोगे तो वही चीज आ जाएगी। ठीक है, और माइनस 2n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n। इन डाउट तो बताओ Sn इक्वल टू क्या हो गया, Sn इक्वल टू हो गया आपका 1 बाय, ये नीचे उतार दो, 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 2x
into 1 minus x to the power n minus 1 by 1 minus x whole square. ये माइनस है, तो 1 minus x into 1 minus x whole square minus 2n minus 1 into x to the power n by 1 minus. ठीक है बच्चे, which is final. कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये समझ में आई बात आप लोग को? यस यस सर। चलिए, तो इसको बेस्ट एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? गलत होगा कोई बात नहीं है, लेकिन जरूर ट्राई करना चाहिए हम लोग को। और जो बच्चे कर चुके हैं वो तो जरूर कर देंगे, उनके लिए तो मुझे कोई डाउट ही नहीं। नेक्स्ट पेज आए? यस यस आप सर। लोग कॉपी नहीं करते हो क्या जी? ले कॉपी। अच्छा, साथ साथ लिख सकल के जाते हो? हाँ भाई, मैं तो स्लाइड पर लिख रहा हूँ, आप तो हाथ से लिखते हो, तुरंत तुरंत करते हो। चलिए नेक्स्ट पे जाता हूँ। क्वेश्चन, find the sum of बच्चे राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? सर यस सर। हाँ, Yes, कोई sir. प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना कि सर ये क्या लिखती है। यस सर। हाथ से लिखता था तो कोई बात ही नहीं था, तब तो आपसे भी फास्ट होता मैं। टर्म, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। जानते हो, मैं लिख तो रहा हूँ बहुत दिन से, लेकिन फास्ट नहीं हो पा रहा है। वो कह रहा है कि प्रैक्टिस से हो जाएगा, पता नहीं कितना प्रैक्टिस करे लोग। मैं, जानते हो, विदाउट क्लास भी मैं इसको लिखता रहता हूँ कि कुछ देखें कैसे क्या होता है, लेकिन तब भी राइटिंग मन मुताबिक नहीं होता है। सीरीज 1 plus 4/5 plus 7/5 square plus 10/5 cube plus dot 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 up to n terms, up to n terms. Please find it. डन सर। इसमें क्या शॉर्टकट यूज किया ये बताओ? 1/5 को x ले लिया बस। मतलब डायरेक्ट आप SN इक्वल टू वो जो शॉर्टकट फॉर्मूला है उसी को यूज कर दिया? नो सर, ऐसे नहीं किया। कैसे किया? सर बस 1/5 को x ले लिया ताकि थोड़ा इजी हो जाए। हाँ और हाँ, फिर वो भी ले सकते हो। और फिर सर फिर तो डिफरेंस मेथड से कर दिया। चलो, मुझे लगा आप SN इक्वल टू जो टर्म आता है, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन को प्रूफ कर देता, जो मैं जहाँ से मैं शुरू किया था उसको प्रूफ कर देता कि एक SN इक्वल टू आ जाता है टर्म वाइज, उसमें अब n की वैल्यू, x की वैल्यू, r की वैल्यू पुट कर दो, निकल जाता है। चलिए ओके, कोई बात नहीं है।
अगले चैप्टर से मजा आएगा आपके साथ में। ये चैप्टर तो क्योंकि सबको पढ़ाना था इसलिए। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, जानते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। ओके सर। कोऑर्डिनेट तो नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी नहीं हुआ। ट्रिग्नोमेट्री हो गया होगा? यस सर, हो गया। Yes. चलो, तो कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे। उसमें तो सब लोग एक साथ रहोगे, उसमें मजा आएगा आपको। और ये चैप्टर जानते हो भले 10th से दिया हुआ, लेकिन इस चैप्टर से जे मेन और जे एडवांस दोनों में क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंशियल सीरीज, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जानते हो दूसरा चीज, इसका कैलकुलेशन बहुत मस्त होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन मस्त नहीं है, भले आप सब चीज जानते हो, नहीं कर पाओगे इसका क्वेश्चन। ये इसकी खासियत। फॉर्मूला देखते हो एकदम लिमिटेड है, 2-4 फॉर्मूला है कुल मिला के, लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो लगता है नहीं करना है। यही तो अलजेब्रा है, अलजेब्रा ऐसे करते हैं। पूरे मैथ्स का सबसे टफेस्ट पार्ट अलजेब्रा माना जाता है। आप जब अपर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे एक चैप्टर रियल एनालिसिस, बाप रे, इतना खतरनाक होता है, पूरा अलजेब्रा है, अच्छे अच्छे का दिमाग घुमा देता है। कौन चैप्टर? रियल एनालिसिस करके आएगा। हालांकि सीरीज पर भी क्वेश्चन है, सीरीज पर भी आपको जब बीटेक फर्स्ट ईयर जाओगे तो सीरीज पर भी आपको मिलेगा, समझ गए? कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, वहाँ आपको देखना बायनोमियल थ्योरम से ही पूरा पूरा समझाया गया है, पूरा का पूरा। लेबनीज थ्योरम, तो मैकलॉरेंस थ्योरम, तो क्या कहते हो, टेलर्स थ्योरम, ये तीनों सीरीज समझ जाओगे तो समझ जाओ, पूरा अलजेब्रा का सीरीज समझ जाओगे। कैसा भी सीरीज दे देगा आप उसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आराम से कीजिए, कोई बात नहीं है, आपके पास अभी समय है 10 मिनट। नीचे होगा। सबसे पहले तो nth टर्म निकाल लो, उससे आपको बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। या 1/5 को थोड़ा देर के लिए x मान लो तो भी अच्छे से कर सकते हो।
बच्चे देखना है इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी देर के लिए 1/5 को कंसीडर कर लो तो पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा ये। क्योंकि देखो कॉमन रेशियो जो है वो आपका 1/5 ही है कि नहीं। लेट हियर ऐसे लिख देता Yes, हूँ, sir. कंसीडर भी नहीं करना पड़ेगा। हियर r इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। Hence, तो इसके लास्ट की टर्म फिर आएगी ना 2n-2 डिवाइडेड बाय n की पावर n। नहीं लास्ट टाइम आपका गलत आ गया बेटा, देखो ना मैं निकाल रहा हूँ। Sn क्या हो जाएगा, Sn आ जाएगा 1 प्लस 4r प्लस 7r स्क्वायर प्लस 10r क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। n टर्म जब आएंगे देखो 1 4 7 जा रहा है, मतलब क्या 1 प्लस n-1, तो ऐसे कर देता हूँ इंटू 3, है कि नहीं, इंटू r टू द पावर n-1, ये आएगा ना। तो फाइनली ये क्या हो गया, Sn इक्वल्स टू 1 प्लस 4r प्लस 7r स्क्वायर प्लस 10r क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 3n-3 प्लस 1 मीन्स हो गया 3n-2, ओके 3n-2 इंटू r टू द पावर n-1। अब r कॉमन रेशियो है तो r से मल्टीप्लाई कर दो, r इंटू Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 को r से करोगे तो ये r हो जाएगा, 4r को r से करोगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, 7r क्यूब हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर करोगे इससे पहला टर्म जो रहा होगा 3n-3 रहा होगा, 3n-3 इंटू r टू द पावर n-1 प्लस 3n-2 इंटू r टू द पावर n हो गया। अब इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। यहाँ पर आप Sn कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस r, ये हो गया 1 प्लस 4r माइनस r 3r प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या आ जाएगा, ये भी 3 में ही आएगा, 3r टू द पावर n-1 माइनस 3n-2 इंटू r टू द पावर n, ओके। अब इसका सम निकाल दो, Sn इक्वल्स टू 1 माइनस r इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 प्लस 3 कॉमन ले लिए, जो बचेगा वो क्या बचेगा, r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस डॉट 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 r टू द पावर n-1, ओके, minus 3n-2 into minus r to the power n. Now you can find the sum of this term, that is equals to 1 plus 3 r, first term is r into 1 minus r to the power, number of terms is n-1, so n-1 by 1 minus r, okay, minus 3n-2 into r to the power n, है कि नहीं बच्चों। तो Sn इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Sn इक्वल्स टू आ गया 1/1 माइनस r प्लस 3 इंटू r इंटू 1 माइनस r टू द पावर n-1 बाय 1 माइनस r होल स्क्वायर, ओके, माइनस 3n-2 r to the power n by r minus 1,
Okay. Now put the value of r as 1 by 5. You'll get your required answer. Hence Sn equals to क्या कर सकते हो? Sn equals to हो जाएगा 1 by 1 minus 1 by 5 plus 3 into 1 by 5 into 1 minus 1 by 5 to the power n minus 1 by 1 minus 1 by 5 whole square minus 3n minus 2 into 1 by 5 to the power n by 1 by 5 minus 1. ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड हो आपका आंसर। बच्चे बात समझ में आई आप लोग को? Yes. किसी को Yes. डाउट? Yes, sir. हेलो, चलिए, कोई No, sir. डाउट नहीं है तो कल थोड़ा सा और मैं इसमें आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें मिसलेनियस सीरीज में बताऊंगा। हालांकि मैं उस पर क्वेश्चन आप लोग को पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन अब अगर कराऊंगा कल के डेट में तो आपको ताजा ताजा याद रहेगा, तो शायद सीख जाओगे, शायद क्या पक्का सीख जाओगे। आप लोग इंटेलिजेंट हो, थोड़ा बहुत तो हो ही। थोड़ा सा मैथ्स का प्रैक्टिस बढ़ाओ, 20-30 क्वेश्चन में कम से कम टारगेट रखो, रोज 25 तो करना ही करना है, चाहे मैथ्स का क्लास हो या ना। और जो आता है उसी को करो रिवाइज, देखो आप फास्ट हो जाओगे, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। समझो, जो आता है उसी को कीजिए आप। मान लो अगर आपको नया क्वेश्चन नहीं आपको दिख रहा है, मिल रहा है, तो आप जो कर चुके हो उसी को करो, उससे कैलकुलेशन आपका फास्ट होता है और एक्यूरेसी बढ़ती है। लोग सोचता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मैं जानता हूँ, क्यों करूँ, लेकिन ये आलसीपन नहीं होना चाहिए, बहुत फायदा होता है उससे। और जो अच्छा क्वेश्चन हो उसको एट ए टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर लो, हो गया। देखो पकड़ बन जाता है क्वेश्चन पर। और जो भी बच्चे फास्ट कर रहे हैं वो ऐसे ही किए हैं, पूछ सकते हो आप उनसे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले क्लास में इसी समय। तब तक के लिए गुड बाय। Good evening, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Good evening. Good evening, Mita. Good evening, all of you. Good evening, sir. Now I'm going to cut your class. Cut means what? Means finish your class. Disconnect your class. Disperse your class. Okay? हाँ बोलिए। Sir, अरे बोलिए। सर हाँ जी, अपना हाँ नंबर जी, दे हाँ जी। सकते हैं? अरे कहाँ पर लिखूं? ये तो बैक नहीं हो सकता है, बैक हो जाएगा। नंबर लिख लो, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। हेलो, आर यू लिसनिंग ऑल ऑफ यू? Yes. लिख लो नंबर Yes, sir. 85109 85109 60317। लिख लिया?